ফাইনালি আমি পৌঁছে গেছি আমাদের আইএসডব্লিউর পক্ষ থেকে অল ইন্ডিয়া হোমিওপ্যাথি সেমিনার যে অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল মৌলালী যুব কেন্দ্রে, আজকে প্রথম দিন সেই অনুষ্ঠান। তো এই মৌলালী যুব কেন্দ্র, এই যুব কেন্দ্রে এই বিল্ডিংয়ে আমাদের আজকে প্রোগ্রাম হবে। দেখে নেবো কোন কোন কোম্পানি স্পন্সর করেছে। কেন্ট ফার্মাকিউটিক্যাল, এসসি দেবস হোমিও রিসার্চ অ্যান্ড ল্যাবরেটরি কোম্পানি আছে। এখনও পর্যন্ত এই দুটো কোম্পানি ব্যানার আছে, এছাড়া আরও অন্যান্য কোম্পানি ভিতরে আছে, তো দেখাচ্ছি। তো চলুন এরপরে এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ডিটেলস আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো ভালো থাকুন। আর যারা যারা এই প্রোগ্রামে এসেছেন, জয়েন করেছেন, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা যারা আসতে পারেনি তাদের জন্য শুভেচ্ছা রইল। পরবর্তীকালে যেন আপনারা আমাদের এই আইএইচডব্লিউর প্রোগ্রামে আপনারা জয়েন করতে পারেন। ফাইনালি আমি পৌঁছে গেছি রাজ্য যুব কেন্দ্র আমাদের আইএইচডব্লিউর পক্ষ থেকে অল ইন্ডিয়া সেমিনারে। তো দেখুন পিছনে আছে বিল্ডিংটা, মৌলালী যুব কেন্দ্র। এখানে হতে চলেছে আমাদের এই ऑल इंडिया से। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारा ऑल इंडिया सेमिनार पर। तो अब हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है और हमारा साथ में आया है सुबीरदा सिलीगुड़ी से आया हुआ है। नमस्कार। आज हमारा सेमिनार शुरू होने वाली है और विभिन्न राज्य से जो आए हैं उनको हम स्वागत करते हैं। और इसके विस्तार में आप तौकीर भाई दिखा रहे हैं, आप प्लीज़ देखिए। तो देखिए आज ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, व्यवस्था है। और आप सर बिहार से आए? बिहार से पटना। डॉक्टर राम अयोध्या ठाकुर, डिप्टी प्रेसिडेंट आईएचओ का बहुत पुराना सदस्य है। मैं काफ़ी बार मिल चुका हूँ। पिछले साल जो बैंडल में हमारा जो सेमिनार हुआ था वहाँ पर पाया था, और इसके अगले साल में जो यहाँ पर ही मौलाली युवा केंद्रों पर जो सेमिनार हुआ था उस पर भी पाया था। आपको पहचान है आप साथ? तो देखिए, तो ये बुफे सिस्टम है, ब्रेकफास्ट है, और इस सेमिनार का हर एक वीडियो हम ब्लॉग बना रहा हूँ, आपके सामने मैं पेश करूँगा। And I pay my homage and respect to the departed soul of our respected Dr. Jadhav ji, and I also request all the members to stand up and to give homage to our departed soul of Dr. K.P. Jadhav for 1 minute. Start. होम्योपैथ चिकित्सक मीडिया के लोग सबों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, धार्मिक नगरी गया से चलकर भगवान विष्णु की जल नगरी मां मंगला की नगरी से चलकर We exchange our views and knowledge of homeopathic practice and homeopathic science. Now I request Dr. P.K. Chatterjee to speak his speech on this occasion. Dr. Chatterjee, please. Thank you. Respected chair of the dais and in front auditorium and all the delegates. I welcome all the delegates. So first, All India Homeopathic Medical Congress by Ideal Homeopathic Welfare Organization by West Bengal State Branch
So I request you to all the members of different parts of India are come to our Congress. So thank you of all of you. I think this Congress is going to Calcutta. All the credit, I think all the credits goes to Dr. Manoranjan Pal and Dr. Amit Kumar. If they are not, their work, no, our success is Congress. If there is fail to Congress, so I, as a family guardian, all my soldiers. So thank you of all of you. Is I speak my word. Thank you, Dr. Chatterjee. Before starting the scientific seminar, the father of our science, Dr. Samuel Hennier, without Dr. Christian Frederick Samuel Henneman, we had not to opportunity to the rational system of medicine homeopathy. Before starting our scientific seminar, the founder of our science, Dr. Henneman, will be guarded by our respective dignitaries. Before that, just I beg a few minutes time from you. Now I request just starting from our Dr. Tripathi to give our respect and to homage to our Dr. Samuel Henneman with flowers. Now Dr. Raghuvanshi from UP. बाद में बोल दे After garlanding to our Master Samuel Henneman, we must pay our homage and respect to our departed soul of Dr. K.P. Jadhav. I request all the dignitaries to give flowers to the feet of our departed heart, Dr. K.P. Jadhav. Now, just I want to suspend this ceremony for 5 minutes. I declare this inaugural ceremony as completed, and next program of our Congress is the first scientific seminar. Sleep disturbed due to itching, thermal hot. And this was a repertory sheet in which Epis, Restox, Natamute came. We gave Epis LM1. This was the case, such big urticaria, and this case was referred by allopath because he already took lot of citrazine, lot of antihistamines, still not responding. Then he referred the case as my colleague that Hitesh, please take care of this case because allopathy is not at all supporting him. Such a small kid, we gave Epis first day, second day, third day, fourth day, everything got cleared. And typically you see Epis like face the angioedema. So that's LM potency. Epis male, like large urticaria, you think of first remedy, that is Epis male. First, next case 5, tonsillitis, 4-year age old. This patient lives in Australia. So by video call, I consulted. So fever since 2 days. You see the tonsillitis here, I said. I'm very sorry due to the projector malfunctioning, we were not able to show you the PPT very well, but this is what we can do. This is a right side tonsillitis, fever since 2 days. And he went swimming, and after that the temperature was running around 104 to 105. So they used to panic what to do. And what happens in Australia, generally they don't give antibiotics very fast. So generally they don't go to
nearby doctors also. They first consult to some doctors where they know what to do. And the favorite remedy of them is Panadol. Whenever fever rises, they give Panadol. That's the equivalent to paracetamol. So what to do on 104, 105 fever with tonsillitis? The complaints was chief complaint dry heat, fever, burning heat when the temperature rises from 104, 105, obvious. Restlessness during fever, no pain in tonsils, that was the peculiarity in this case. He was not at all complaining of pain. He can drink water, he can eat food, he was not complaining of anything. Physical symptoms, thirstless. Mental symptoms, he was very, very dull. Due to high fever as well, thermal, hot. What could be the remedy? Ignition. Very good, sir. Any more? Sir? We repetize. Obviously, painless tonsils, the first remedy, think of baptisia. So, baptisia tedious, 30 potency. On the next day itself, within 24 hours, the child was absolutely fine. And this is the image after baptisia. In 48 hours, everything gone. This is a vitiligo, and he had a future related stress. Thermal toward medicine, we gave lycopodium actually due to his completely disappeared. So what role of in kind of cases when we get blocked? When we follow Sarko's no source. So it has a great importance in our practice. O. Julian has written so many things. Dr. B.K. Sarkar has written so many things. Even a lot of provings has been done in Midrapur College. So it was amazing to read. Next case, nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome, child, I think 7 to 8 years old child, congenital heart disease and nephrotic syndrome. And he was suffering from 8 to 9 months, and he developed ascites with the swelling. He has a lot of protein coming, and past history was he is the second baby. First baby is healthy. He was twins. He was born as twins. Mother pregnancy, no complaint at all, no history. And family history: father diabetes since 4 to 4 months, 5 months. Mother RA, grandfather hypertension, auntie also hypertension, grandfather hypertension. Thirst, he's very thirsty. So nephrotic syndrome with thirsty, that was a peculiarity, aversion to sweets. And he wants to drink waters every time. Even he was sitting, he was drinking a lot of water. And he has a frequent urge to urination. Obviously, in nephrotic syndrome, this is common. Like 18 to 20 times in 24 hours. And he was very obstinate and a lot of anger. And if you don't give food, he gets angry because he was on cortisone. And he had a moon shape. So I told him stop cortisone from the very first day and take our homeopathic medicine. I'll show you how he used to look. And thermal chili. Medicine, obviously, we know thirsty plus dropsy. Sir, remedy? Epocyne. Thirsty, dropsy, epocyne. So, epocyne, LM1 we gave, and the result was completely. The child is still better. I'll show you the pH. We did the ultrasound also, all gone away. And this is the baby. See his stomach, abdomen, moon shape, and now see. It's absolutely fine. This is 4th of July only. This is epocyne. LM1 is still zone. Case A, backache. Backache with a case of arachnoid cyst. This case of arachnoid cyst in the spine, and he has a lot of pain as he has a tumor. He cannot turn in the bed, and ambulation on continued motion. So back pain, ambulation on continued motion. He had a bus accident, and when in the bus accident, what happened? People used to climb upon him and got out from the window. So that was a history. And again, he had a car accident on 2018. So he had a lot of injury. Again, then motorcycle accident 3 times. He has fallen down and he had an injury on the right wrist. So he has so much of history of injury. Past history: diabetes, hypertension, malaria, mother hypertension, physical illness, aversion to sweet, desire spicy, thirstless, ailments from emotional stress, his chili. So what is the first remedy we think generally with the back pain, lumbar stiffness, and it walks and it MX? Rustox. Very nice, sir. I gave Rustox in IPD. Nothing worked. First remedy. What to do? No effect. We gave Arnica also based on history. What to do? No effect. So we gave Bellis parenesis because of our action of most deeper tissues. And the first remedy injuries has been written to the deeper tissues after the major surgical work, also Bellis and staff. And
It acts upon the muscular fibers of the blood vessels, much muscular soreness, congestion due to mechanical causes. That's also Bellis. So we get Bellis P200 frequently, and this was a follow-up. क्या नाम है आपका? क्या हो रहा था? और कहाँ पे? कब से? 3-4 महीना से। अच्छा, अभी 10 दिन यहाँ रहे, दवाई लिए, तो अभी कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। अच्छा, क्या क्या उसमें क्या चलने में भी दिक्कत हो रहा था? अभी आज तो चला, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ठीक लग रहा है। अच्छा, ये बताइए 10वें दिन में 100 में से कितना बेहतर लग रहा है आपको? 80%। अच्छा, ठीक है, चल के दिखाइएगा थोड़ा। आ जाइए। पहले ऐसे चलता था, ऐसे He's showing how he used to walk. कैसे? इधर ऐसे पहले ऐसे चलते थे और अभी नॉर्मल हो गया ना। जाइए ना। Pain was an intercostal rheumatism and backside. नहीं, उलट के जाइए। So it was absolutely fine. 9. Appendicitis case, pain in iliac region. I request Mr. Sri Krishna Dev to come on the dais and have your seat, please. Dev, please. Today is the birthday of Mr. Sri Krishna Dev. We must very much lucky to celebrate the birthday of Mr. Sri Krishna Dev from Queen Pharmaceutical. And I request Mr. Sri Krishna Dev to cut down the birthday cake, and we will enjoy this birthday ceremony. Sir. स्लोगन लीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी टू यू। पकड़ के रखा। থাকবেন তো না উপায় নেই, তুমি এমন ভাবে বন্ধন দিয়েছে ব্যাম্বু। On behalf of Ideal Homeopathic Welfare Organization, sir, for the betterment of homeopathy fraternity
we are complementary to each other. The whole physicians of India and the pharmaceuticals company of India. There are so many pharmaceuticals, but a very few pharmaceuticals company. I wish to say the only and one pharmaceuticals company, Kent Pharmaceuticals Limited company. Everywhere they contribute their financial help and they contribute their everything. What the organization in this time, the chief sponsor of this Congress is Kent's Pharmaceuticals. So from Ideal Homeopathic Welfare Organization, really we are grateful to Kent's Pharmaceuticals. We hope a long life and unlimited progress of the Kent's Pharmaceuticals so that they continue their contribution to such Congress and the whole homeopathic fraternity will be benefited. With these few words, now I request Dr. Amit Kumar to give a small memento to Sri Krishna Dev. Homeopathic Welfare Organization to give a small memento to Dr. Somnath Dev. We'll give the memento to Virendra Kumar Gaya. Any effort on behalf of Ideal Welfare Homeopathic Organization, when you will away from this dais and you will be busy in your schedule, hectic schedule, you will forget. It is the rule of law. Out of sight, out of mind. But this small memento, when it will remain in your drawing room and when you will be able to have a relaxation and your look will go to that small memento, at that very moment you will be able to memorize the occasion, the Ideal Homeopathic Welfare Congress. That's why this memento is given to you so that you can keep it in your memory and you can remember the name of Ideal Homeopathic Welfare Organization. Thank you, sir. For sure, from that day till now, he is with us. I wish to felicitate Dr. Rajiv Kumar and he will be felicitated by Dr. K.K. Yadav. Yadav. एक आदमी नहीं, दो आदमी। एक्चुअली हम लोग के फार्मास्यूटिकल से है और हम लोगों का यही ख्वाहिश लेकर आए हैं कि होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है, फास्टपैथी होम्योपैथी यही पूरा इंडिया में लाना है, यही हम लोग का इच्छा है और इसके लिए आप लोग का साथ चाहिए। हमको आगे भी IAWO से हम लोग मिलकर बहुत सारा कार्यक्रम करें। धन्यवाद। ওই লেকচারগুলো শুরু করে হিংসে আলা হয়ে গেল, ওর মধ্যেই তোমার শেখা। Now I request Mr. Asim Chatterjee on behalf of BJN to come. না না এটা না, ওটা কেন্দ্রের বিজেনের। Mr. K.K. Azad to come on the dais, please. কিছু না পাওয়া যায় তাহলে পিঠা গেল ये हमारे संगठन के बहुत ही जुझारू और क्रांतिकारी महिला हैं और ये बंगाल से जाके
बनारस में अपना परचम लहराए हैं। त्रिपाठी जी, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर के श्रीवास्तव फ्रॉम बनारस। এখান থেকে শুধু পুশ করে দেবে, এটা সেভ করে দেবে, এই যে চালু করবে। আচ্ছা, পুশ করে দেবে। पी बनर्जी मिहिजाम से डॉक्टर এটা পি ব্যানার্জির বংশধর প্রণব ব্যানার্জি নাকি। डॉक्टर प्रकाश श्रीवास्तव यूपी। विजय फार्माकोटिकल, संजीव सरकार, देवेंद्र जी एलिनोमिया लेबोरेटरी। রেকর্ড এই পজিশন থেকে নেবে। চলে আয়। জুম করতে আসছে তো, আর একটা জুম হবে। ঠিক আছে। सामने देखिएगा अंकल। After finishing this felicitation to our respected doctor, we are going to start the next program, that is a small session for Dr. Birender Singh. He will tell something or he will elaborate on his father and himself. Just after finishing this session, you wait, and after that one, you will have a Mani Mangal from Manipur. आज को सुने और ये जो कविता पढ़ती है, समाज की जो जीवंत समस्या है, देश की जो जीवंत समस्या है, चाहे वो बेटी की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो राजनीति की समस्या हो, उस पर ये पाठ करती है, वो पढ़ती है और बड़े बड़े मंचों के साथ, बड़े बड़े कवियों के साथ, सुरेंद्र शर्मा जैसे लोगों के साथ ये कविता पाठ शेयर कर चुकी है। हम सब के लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि आज हमारे सामने है अंकिता सिन्हा, जो टाटा से चलकर मेरे पास आई है। मैं सब प्रथम उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। माँ शारदे को नमन करते हैं। संवेदनाएं जहाँ उकेरित होती है, जहाँ स्फुलित। সারাদিনে আমাদের প্রোগ্রামের শেষে এখন রাতে ডিনার চলছে। দেখুন ডিনার, সারাদিন প্রোগ্রামে মিটিং করে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর এই ডিনার
চলছে, সবাই দুটো সিস্টেম, লোকেরা সব বাড়ি ফিরে গেছে, দূর থেকে যারা আছে তারা নাইট স্টে করে গেছে। এই তো দাঁড়া না, আমি ভিডিও চলো এখান থেকে ক্যাপচার করে নেবো। পোজ সবাই সবাই পোজ রেডি করো, স্মাইল, ঠিক আছে? হ্যাঁ। Your presence and attention to the deliberation. Thank you all. And first of all, I am paying my homage, heartiest homage to Dr. CSF Hanneman, our master, our everything, our soul, situated in our bottom of heart. That is our master, Dr. Hanneman. And next, a big thanks to Dr. Manoranjan Pal sir to give me the opportunity to rise on the dais. And the subject is observation and prescription. Yesterday, Dr. Deepesh Sharma has already explained the practical part of observation and prescription. Only the practical part has been delivered by him. Today, I am going to describe the organelle as well as also the practical part, theoretical part as well as the practical part. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगी और बंगाली में भी ऑब्वियसली. So now I am going to start this observation and prescription. Likewise, sir, earlier he said that so vast topic to discuss and to enlighten, but start with the first footstep, which is mandatory for discussion. Mandatory for discussion of all about what that is observation. The word comes from. So the word comes from the 16th century of Renaissance period of discovery of science and philosophy. 16वीं शताब्दी से पहले साइंस और फिलोसफी के बारे में कोई खोज हुई नहीं थी. तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन, जो है एक शब्द जिसे अवलोकन कहा जाता है. इस अवलोकन का बहुत बड़ा, बहुत वास्ट, एक बहुत ही बड़ा एक क्राइटेरिया है, बहुत बड़ा परिदृश्य है, सिनेरियो है, which is enlightened and interpreted by the great Greek philosopher Aristotle. 16th सेंचुरी में जब ऑब्जर्वेशन, अवलोकन का समय, जब साइंस और फिलोसफी का उत्थान हुआ, तो सबसे पहले ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, अरस्तु, जो फादर ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग कहे जाते हैं, द फादर ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग. अगेन द थ्योरी बीइंग प्रोपगेटेड बाय डॉक्टर लॉर्ड बेकन, द फेमस फिलोसोफर ऑफ 16th century, द फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग. That reasoning, which we call logic, is a way to describe the observation. Observation is nothing but the perception of a thing, likewise in your way, that should be in your logic, and that always should be with your reasoning also. वहाँ आपका तर्क होना चाहिए. अगर कोई अवलोकन अतार्किक है तो वो संपूर्ण अवलोकन कभी नहीं माना जाएगा. आप लोग समझ पा रहे हैं ना? Everybody is getting ना? Afterward, in the 18th century, when 1790 to 1796, the promulgating year of homeopathy, a holistic science based on the method of individualization by Dr. CSF Hanneman, where he followed the inductive reasoning of method. अब जब सबसे पहले 16th century में अरस्तु ने, तो जब साइंस और फिलोसफी के उत्थान हुआ, उन्होंने अपनी व्याख्या, अपने ये दिए, विचार दिए. उसके बाद आने वाले जितने भी अन्य ये रहे साहित्यकार या फिर दार्शनिक या फिर साइंटिस्ट जितने रहे, वैज्ञानिक रहे, उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से अवलोकित परिदृश्यों को या अवलोकित चीज़ों को देखा अपने अपने मैटर्स से. तो सबकी अपनी अपनी तर्क थे, सबके अपने अपने रीजनिंग्स थे. डॉक्टर हैनीमन ने भी बहुत सालों तक, जो आप सब लोग उनकी जीवन परिचय में जानते हैं कि वो एक MD मेडिसिन रहे हैं, एलोपैथ के डॉक्टर रहे हैं,
और बाद में जब होम्योपैथी के लिए कन्वर्जन हुआ थ्रू द क्यूलेंस मेट्रिया मेडिका, जो द थिंग्स कम्स फ्रॉम, जो प्रोमulgation हुआ, मतलब जो उत्थान हुआ होम्योपैथी का, उसमें इन्होंने सबसे पहले जब सारी बातों का अवलोकन किया, बहुत ही गहरा और बहुत ही समृद्ध अवलोकन, जिसके बेस पे, जिसके आधार पे आज इस जगह क्या दुनिया के डायस पे हम खड़े हैं कहीं, तो उस व्यक्ति ने जो हमें दिया है वो तो हम अपना रक्त देकर भी नहीं चुका सकते। जिस दिन हम अपने रक्त की आखिरी बूंद, हम जब मरेंगे, अपनी आखिरी सांस भी लेंगे, तो हम उनके कर्ज को नहीं उतार सकते। मतलब हम जो होम्योपैथ हैं, लिटरली फ्रॉम आवर बॉटम ऑफ हार्ट। तो उन्होंने किस रीजनिंग को, उन्होंने किस तर्क को चुना? क्या उन्होंने अरस्तु के तर्क को चुना, या किसी और दार्शनिक, या किसी और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के तर्क को चुना? तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस विषय पर बहुत ज़्यादा गूढ़ अध्ययन किया, और गूढ़ अध्ययन के पश्चात उन्होंने चुना लॉर्ड बैकन के इंडक्टिव रीजनिंग ऑफ मेथड को, जिसको उन्होंने अपने ऑर्गेनॉन में, अपने साहित्य में, अपने गीता में स्थान दिया। ये हमारा होम्योपैथी का साहित्य कहा जाएगा, क्योंकि होम्योपैथी इज अ हीलिंग ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग, वेयर वी नॉट ओनली कंसर्न विद द साइंटिफिक नॉलेज टू कलेक्ट द डाटा, द ऑब्जर्वेशन, what we call is not only the concern with scientific knowledge to collect the data from a part of 5 senses. It belongs to the category of empirical approach. According to Bacon, the aim of science is to discover the secret facts of nature. Observation is nothing but finding a fact. Observation या अवलोकन क्या है? किसी सत्य की खोज, किसी भी वस्तु के सत्यता या उसके प्रमाण की खोज। क्या प्रमाण देती है, कैसे प्रमाण देती है, कहाँ से ये प्रमाण लिए गए, ये सारे कलेक्टिंग डाटाज हैं। अब यहाँ कलेक्टिंग डाटाज अगर हम अपने प्रोफेशन में, अपने फील्ड में, अपने रोज़ के डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है, अपने पेशेंट्स पर देखें, तो हम जो भी सिम्टम्स गैदर करते हैं, टोटलिटीज़, वही हमारी कलेक्टिंग डाटाज हैं। और साथ साथ आजकल पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी हैं। उस समय तो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस इतने वास्ट थे भी नहीं, क्योंकि साइंस इतना डेवलप हुआ ही नहीं था। 18 सेंचुरीज के बाद से साइंस की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। तो अब तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और भी ज़्यादा इंडक्टिव मेथड्स ऐड हुए हैं। मैं उस समय की बात करती हूँ जब हैनीमन का समय था या उससे पहले का समय था। अकॉर्डिंग टू the Lord Bacon, the aim of science is to discover the secret of fact. Observation is nothing but finding a fact. It is a perception with definite purpose, where we should develop the instinct या intellectual morality of recording all facts that comes to our notice without preconceived notions. जब हम किसी भी सत्य की खोज करते हैं, तो अगर हम उस सत्य को खोजते हुए किन्हीं परिधियों में, किन्हीं बाधाओं में या किन्हीं दायरों में उलझ कर रह जाए, तो वो खोज अधूरी होगी। जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें पूरे समस्त पृथ्वी पर समान रूप से उदयमान है, वैसे ही ये सत्य समान रूप से उदयमान रहना चाहिए, और इसका जो दायरा है वो असीमित होना चाहिए, अपरिसीमित होना चाहिए। ये मेरा थॉट है, ये केवल और केवल मेरा परसेप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी परसेप्शन हो। ऐसा तो हमेशा किसी ने भी नहीं कहा कि मैं जो कहूँगा या मैं जो कहूँगी वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि जिस दृष्टिकोण से या जिस तरफ मैं खड़ी हूँ वहाँ आप दिख रहे हैं, और जिस तरफ आप खड़े हैं वहाँ केवल मैं ही दिख रही हूँ। तो सबका ऑब्जर्वेशन, सबका जो अवलोकन होगा वो अलग अलग ही होगा दृष्टिकोण से। ये तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ। आज का सर ने जो मुझे बोलने का मौका दिया है, ये मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर रघुवंशी सर को, डॉक्टर पाल सर को, डॉक्टर चैटर्जी सर को, सबको, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, कि आपने मुझे यहाँ से बोलने का मौका दिया है। और बहुत कम ही लोग अब हैं, लेकिन फिर भी जो भी हैं वो बुद्धिजीवी हैं, और वो कुछ समझें, और वो भी इसको आगे ले जाएं, और सोचे समझे अन्य जगहों पर भी, अन्य सेमिनारों पर भी इनकी चर्चाएं हो, क्योंकि वाकई वस्तुतः रूप से तब के अवलोकन की 18 सेंचुरी के समय के ऑब्जर्वेशन से लेके आज 22nd सेंचुरी चल रही है, 22वीं 23वीं ये सदी का दौर है। आज भी हम कंप्लीट नहीं हैं, हम पूर्ण नहीं हैं।
संपूर्ण तो हो भी नहीं सकते, संपूर्णता को तो मिलना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो होम्योपैथी में काम नहीं हो रहे हैं, रिसर्चेज नहीं हो रहे हैं, या हम ऑर्गेनॉन को भी और समृद्ध कर सकते हैं। ऑर्गेनॉन जो लिखी गई डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा वो भी संपूर्ण नहीं थी, क्योंकि तभी तो उन्होंने कहा कि आई हैव पेव्ड द पाथ, मैंने रास्ता दिखाया है, उस पर तो हमें और जोड़ना है, तो हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी निष्क्रियता है, हमारी अक्षमता है, हम मानते हैं, हम जानते हैं और हम मानते भी हैं। मैं तो इस मंच से होके ये बात ज़रूर कहूँगी कि हम मानते हैं, हम असंपूर्ण हैं, और अभी तक हम जो पढ़े या हमने जो आगे किया करना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। Observation could be vitiated by two factors, that is malobservation, the positive fallacy in which we observe the things wrongly, and the non-observation, a negative fallacy because in it we don't observe something. Observation को भी दो रूप से परिभाषित किया गया है, malobservation और non-observation। कल डॉक्टर रामराजन सर ने यहाँ से डायट से जो कहा वो अप्रतिम था, और बहुत ही मतलब ऐसे समृद्ध लोगों को हमें सुनना है, आगे भी सुनेंगे हम। उन्होंने कल एक अपने केस के बारे में डिस्कस करते हुए कहा कि एक लेडी जो उनके पास आई, उन्होंने उनको देखा, ऑब्जर्व किया और ये पाया कि ये लेडी बहुत माइल्ड यील्डिंग नेचर की है, तो ये पल्सेटिला होंगी डेफिनेटली। अब देखिए किसी भी व्यक्ति वस्तुतः चीज़ों के बारे में, जैसे डायस पे खड़े मैं आपको देख रही हूँ और नीचे ये पे बैठे, पोडियम पे बैठे आप लोग मुझे देख रहे हैं। अब सबके देखने का नजरिया अलग है। उन्होंने पहली बार उनको देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये बहुत ही माइल्ड लेडी होंगी, बहुत ही सौम्य विचारों की होंगी, बहुत ही सॉफ्ट होंगी। लेकिन जब बाद में उन्होंने उनको दूसरे दिन ऑब्जर्व किया, उनकी देवरान या फिर जेठान आई हुई थी उनके साथ, तो वो उनके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही थी और व्हाटएवर, वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से थी, तो विंडिक्टिवली। तो तब उनका ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ। दैट ऑब्जर्वेशन वो एक ऑब्जर्वेशन है, वो एक अवलोकन है, क्योंकि उसके बाद ही प्रेस्क्रिप्शन बनेगा, बिना उसके तो बन ही नहीं सकता। तो अब देखिए कहाँ मैल ऑब्जर्वेशन फॉर्म हो रहा है। दिस वी कॉल्ड मैल ऑब्जर्वेशन, कि हम एक चीज देखते हैं, वस्तुतः रूप से कोई पेशेंट हमारे पास आता है, पर क्या वो पूरी तरह से खुलता है हमारे सामने? मैं केवल मेंटल जनरल्स की बात करूंगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, जिस पर शायद मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करके सक्सेस पाते होंगे, मैं पाती हूँ श्योरली। तो केवल मेंटल्स की बात करें, सर ने भी उस वक्त मेंटल्स को ही प्राथमिकता दी थी, डॉक्टर रघुराम राजन सर ने। तो एक कोई भी व्यक्ति, वो लेडी थी, चाहे कोई जेंट्स हो, चाहे एनीबॉडी, बच्चे ही क्यों ना हो, बच्चे तो खैर ये होते ही हैं, निष्पाप होते ही हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। लेकिन अब एक एजेड लेडी हो या हाफ एजेड लेडी हो, वो जब नेक्स्ट डे उनको देखते हैं तो वो देखते हैं शी इज़ वेरी सूट, वो तो बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है। अब ये जो कनिंग वर्ड आया, अगर अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स, अगर रूब्रिक्स को भी यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि देखिए अब ये वास्ट टॉपिक है, इसमें तो सारी चीज़ें आएंगी, पूरा ऑर्गेनॉन समाएगा, पूरी मेट्रिया समा जाएगी, वो भी खाली हो जाएगी, फिर भी हम कुछ और सोच रहे हैं, वी आर समथिंग डूइंग। ये जो कनिंग वर्ड है, दिस शायद उनको उस विजिट में भी नहीं पता चलता, अगर वो अपने देवरान या जेठान जो भी रही होंगी उनके साथ नहीं आई होती, या फिर व्हाटएवर। हम सब लोगों के साथ ये चीज़ें हैं सर, क्योंकि वी आर ऑल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स इन डे बाई डेज प्रैक्टिस। तो ये मैल ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन को, अवलोकन को भी उन्होंने दो भागों में तब बांटा जबकि साइंस इतना समृद्ध था नहीं। तो सोचिए कि उनकी जो सोच थी वो कितनी आगे की रही होगी। 88 साल भगवान उन्हें 188 साल अगर और आयु देते तो और बहुत कुछ हो सकता था, बट दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। हम ऐसे सोच तो सकते हैं, लेकिन क्या वो पर्सनैलिटी रही होगी, रियली शब्द नहीं है मेरे पास, मैं पोडियम से क्या कहूँ डॉक्टर हैनीमैन के बारे में। उन्हीं का दिया खा रहे हैं। खैर, नॉन ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव फेलेसी। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत सारी चीज़ें लेके, बहुत सारे सिम्टम्स लेके, या कॉम्प्लेक्स डिजीजेज लेके, बहुत सारी डिजीज एक साथ है, उसको हाइपोथायराइडिज्म है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज़ है, उसको है मल्टीपल रिस्क फैक्चुअल डिजीजेज लेके दे कम्स। अब हम क्या ऑब्जर्व करें या क्या ऑब्जर्व ना करें? पहले ही माथे में हाथ, हे भगवान, किसको पहले ठीक करें? क्या सुपरफिशियल है, क्या डीप है, क्या इंटरकरेंट है, समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है।
these all things we are facing in day by day practice. ये कोई नहीं कह सकता कि हम झुठला रहे हैं अपने आप को। मैं इस पोडियम से खड़े हो गए एटलीस्ट अपने गुरुओं के सामने, अपने मास्टर्स के सामने तो झूठ नहीं बोल सकती। ये चीज़ें होती हैं हम सबके सामने। अब देखिए क्या होता है, इतने सारे फैक्टर्स के बीच में हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करते या इग्नोर कर देते या देख ही नहीं पाते। हड्डी बदलाते हो, मतलब ये लेडी जो है 72 ईयर्स ओल्ड, ये विडो है। सबसे पहली बात पॉइंट जिस पे मैंने रेमेडी प्रेस्क्राइब की थी, मेरी दृष्टता थी, मुझे नहीं पता सर आई वॉज रॉन्ग और राइट, मैं ये कह रही हूँ। वो एक विडो लेडी थी और वो उनके 2 बेटे हैं, एक यहाँ रहते हैं और एक बाहर रहते हैं। तो वो किसी दिन रास्ते से जा रही थी, उनको ठोकर बहुत ज़बरदस्त लगी और वो गिर गई और उनका जो ये हड्डी है फीमर बोन फ्रैक्चर हुआ। तो 2 मार्च को मायर पायर ऑपरेशन हलो, हाड्डी बदलाते हलो। बेंगली है तो बांग्ला में लिखा है। 30 मार्च अचानक की हलो, मार बॉडी रेस्पन्स करा बंद कर दिल। वो हॉस्पिटल में ही थी। 30 मार्च को मेजर ऑपरेशन हुआ था और उनको प्रॉब्लम्स आ रहे थे एक के बाद एक, तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ा। इनका एक बेटा रेलवे में है, वही मेन उसी की वाइफ ने ये भेजा है। 30 मार्च को अचानक की हलो, मायर बॉडी रेस्पन्ड करा, माँ की तबीयत रेस्पन्ड करना बंद कर दी করে দিল। ডাক্তার বললেন সেমি কোমাতে চলে গেছেন, সেমি কোমা में गई है। डॉक्टर ने कहा आईसीयू থেকে রেখেছিল কিন্তু কোনো রেসপন্স না হওয়াতে ডাক্তার ছেড়ে দিল। अब आजकल के डॉक्टर्स तो आप जान ही रहे हैं, जब कोमा या सेमी कोमा में पेशेंट है, बेकार बेड ऑक्यूपाई किया है, 70 के बाद ही होता है। आजकल तो 50 में ही होता है, 50 साल जी लिया अब छोड़ दो, है तो वो जिए मारे छोड़ दो उसको उसके हालत में। अब उनकी माँ है, वो लेके आए। তারপর আমরা বাড়ি নিয়ে আসি 3 अप्रैल शायद 5 अप्रैल তোমার ওষুধ চলছে, মানে 5 अप्रैल को मैं उनके घर पे गई थी और मैं उनको देखने गई थी। द स्टेट ऑफ हेल्थ वाज दिस। ये मैं क्या दिखा पाऊंगी मुझे नहीं पता, या आप लोग क्या देख रहे हैं। राइल्स ट्यूब लगा हुआ है बाकायदा, वो घर पे ही हॉस्पिटल बना हुआ है। वो क्या लेडी वो सिम्टम देगी, उसका पोता है ये, वो उसके हाथ पकड़ के पूछ रहा है तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, तो शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल कि क्या है वो। मैं जब गई तब मतलब मैं अबाउट टू डाई, सब वो एलोपैथ तो बोल ही दिया था ले जाओ 2-4 दिन सेवा करो, जितना करना है करके उसको हटाओ। अच्छा, फिर ओनली द पार्ट इज एंजियोएडेमिक। अब 3 लेग स्टूल चाहिए, 3 सिम्टम्स तो मिनिमम स्ट्रांगली चाहिए किसी चीज़ को प्रेस्क्राइब करने के। मेरे पास नहीं था सर, ट्रूली मैंने केवल इस आधार पर ये किया क्योंकि हमारे पास ही रहती है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी है। कम एज में विधवा हो गई थी और अब देखिए विधवा में कैसे चेंजेस भी है। अब तो बहुत सारे डिस्कशन के पॉइंट है, मैं नहीं करूँगी। अब एक विडो लेडी है तो या तो वो इंडिफरेंस टू द सोसाइटी हो जाएगी, इंडिफरेंस टू ऑल द फीलिंग्स हो जाएगा कि चलो सब चीज़ों से विराग और विरक्ति आ गई, या बहुत ऐसे भी होते हैं जो जेलस हो जाते हैं कि वो ये सोच रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की जेलसी होगी, उनके बहुओं से हो सकती है या किसी भी चीज़ों से, अपने लड़कों के प्रति ओवर पॉजिटिव हो सकती है। जो ये लेडी थोड़ा वैसी थी, मुझे पता था वैसे। मैं वो आए बोले देखो आप कुछ नहीं है, जान नहीं कोनो गति से करे होम्योपैथी क्या है, जिसकी नहीं है कोई गति वो करता है होम्योपैथी। कहाँ पहुँच गए हम। खैर, तो मैंने ब्लाइंडली एपी स्मेल दिया था। क्या दिया था वो मैं बता भी गई हूँ सर, मेरी दृष्टता है, पर जो भी हुआ है एक्शन वो आपके सामने है। उसके बाद वो लेडी उठ करके बैठी और एक्टिविटी स्टार्ट्स। ये होम्योपैथी का मैजिक है सर, मेरा मैजिक नहीं है, ये होम्योपैथी का मैजिक है। क्या इस व्यक्ति ने हमको देख के गया है, हम कितना कर्जदार है इस हैनीमैन के। मैं नहीं बता सकती, मेरे फादर आज है नहीं, ही वाज आल्सो। हाथ पकड़ के तो सीख नहीं पाए, जो भी सीखा टूटा फूटा जैसे भी सीखा, अब वो चलने लगा व्हाटएवर। तो लेकिन वो चलने शुरू किया, लेकिन उसको हो गया था बेड सोर, इतना दिन तक पड़े। अब ऑब्वियस सी बात है बेड सोर तो होगा ही। अब आ गया बेड सोर। अब देखिए वो पूरा ठीक हुआ नहीं हुआ, बेड सोर कम्स इन फ्रंट कि आ गया बेड सोर। लो अब क्या करोगी, कुछ भी नहीं था। गई, फिर बुलाए थे, कुछ भी नहीं था। मैं केवल हाथ पांव छुए, वो कुछ बता भी नहीं है, वो तो उतना बताती नहीं है। तो ऐसे करके छुआ तो सब कुछ ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा और गैंग्रीनस ये था। আমি only prescribe করলাম সিকেলি কর্ড and afterwards echinacea ointment also and progressively आज उसका घाव ऐसा है। और भी रेमेडीज थे, कार्बोवेज था, आर्निका भी थी, समय समय के साथ दिया गया। द स्टेज ऑफ हेल्थ हैज बीन गिवन। राइट नाउ
काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब वो ठीक भी हो जाएंगी। तो उनका एक स्टेटमेंट आया है। माइक के पास लगाइए, माइक पे लगाओ, आवाज चालू। ये है कि हाँ, ये नहीं है कि मैंने वो दिया और उसके बाद कुछ नहीं दिया। ये ट्रूली रॉन्ग है। मैं ये नहीं कहूँगी जैसा ऑल द डॉक्टर्स से ये दिया बस इतना देके हो गया। जैसे जैसे सिम्टम्स आते गए रेमेडियल चेंजेस अवेलेबल। हाँ, लेकिन आप इरेशनल प्रेस्क्रिप्शंस तो हम नहीं कर सकते। जो प्रेस्क्रिप्शन का क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से जो इनिमिकल होगा रेमेडी या जो उसके लिए वो एक्शन को ये करेगा रोकेगा, ऐसी रेमेडी तो हम नहीं दे सकते। जहाँ इंटरकरेंसी होगी वहाँ इंटरकरेंट रेमेडीज देंगे और ऐसे करते करते रोग आज आके यहाँ इस स्टेज पे है और शी इज फीलिंग बेटर। ये होम्योपैथी है और ये हमारे लिए आप सबके साथ है। जनरली कभी केस प्रेजेंट नहीं करते, आज ये किया, ये होता है सर। और एक ही क्वेश्चन पुट किया, वही जो सर जो मैंने कहा अभी आपको क्या कहना है वो अगर हम 4 डॉक्टर देख रहे हैं सिम्टम्स को तो कौन क्योर करेगा उसको? आइदर वुड बी साइनसाइटिस और एनीथिंग। ये है ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब भी ऑर्गेनल पढ़ा सर क्लासेस में ऐसा हुआ है कई बार कि क्वेश्चंस पुट करते गए ऑर्गेनल के साथ पागल हो जाते, इतना क्यों क्वेश्चन करते, क्योंकि सर क्वेश्चन तो आते हैं और आज भी क्वेश्चंस हैं। आज भी क्वेश्चंस है। यही बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। थैंक यू। Thank you, Arpita, for giving her speech. Really, if you go through the books too much, you will find many things vacant in homeopathy, still now. She has felt it. I feel it. A few times I also narrated it and expressed my views in presence of many stalwarts, those who used to make the advisory committee of CCRH and CCH, Central Council of Homeopathy and Central Council of Research in Homeopathy. But neither of them bothers for my suggestion, for my thinking. The same situation is under our beloved Arpita. Ken several times has contradicted himself of his own words. All the symptoms gone, but the patient is not feeling well. Number one phrase. Number two phrase, when the symptoms are gone, there is nothing except cure. Two contradiction. How it is possible? How it is possible? And the two phrases by Kent. He is no more with us. We can't ask him. But the question arises in my mind, who is my master to whom I can ask my question? Number one. Number two,
Now whether the K-12 observation is necessary nowadays, after the invention of 6th edition of organon, where there is a new method of administration of drug, 50 millisievert potency. Whenever you are applying the medicine in centesimal potency, you have to follow the prognosis of the medicine after being administered into the patient. But whenever you are giving the medicine to the patient, have you seen? To a patient, in new scale of potency, that is 50 millisievert potency, there is no question of aggravation. There is no question of waiting. You are giving the medicine regularly within 5 days, acute disease 2-3 days, chronic disease 7 days, maximum 15 days you wait, no relief. Second prescription, medicine wrong, I have to change my medicine. No need of aggravation, antidotal, etc. etc. Repetition does not require, because the rule is to administer the medicine. The patient is feeling well, you continue the medicine. As per the 6th edition of organon, when you are applying the medicine in 50 millisievert potency. But in centesimal potency, when you are giving the medicine to your patient, when the patient starts to improve, you stop the medication. The question is, in organon, there is preparation of medicine in centesimal potency, in decimal potency, in 50 millisievert potency. Now the question, the physician who will use the decimal scale, who will use the centesimal scale, who will use the 50 millisievert scale, their observation, their activities will be different. In most cases, the decimal potencies, you see, it was prescribed, still it is prescribed. Centesimal potency, what difference between decimal and centesimal? The volume difference in 1:9, 1:99. In 50 millisievert, 1:50,000. मैंने कभी 50 मिलीसीमेंस LM पोटेंसी नहीं यूज किया है अपने लाइफ में। मुझे LM पोटेंसी के बारे में ये लगा कि जो 6th एडिशन में आया होगा उसका आगे कोई रिवीजन ही नहीं हुआ होगा, पता नहीं वो क्या होगी। मैंने डर के मारे आज तक कभी LM पोटेंसी, शायद मैं यहाँ से कह रही हूँ जो सच्चाई है, मैंने कभी नहीं यूज किया LM पोटेंसी। We have to discuss ourselves that this is the situation in homeopathy. So first your work is, you fix up the one scale of potency, either 50 millisievert or decimal or centesimal. If you select the 50 millisievert, you discard centesimal, decimal. No preparation of medicine will be available in the market in centesimal potency and decimal potency. If you discard 50 millisievert potency, only centesimal, okay, well, you stop preparation of medicine in decimal scale and 50 millisievert scale. Who will do that? Who will do that? Nobody will do that. You are doing centesimal potency using, he is doing 50 millisievert potency, decimal potency, like that. Another very interesting thing is, when I was a student, I raised a question. 1 to 71 organon of homeopathy. It is the theoretical part of homeopathy. After 71, 72, the rest of the homeopathy is practical part. In the practical part, there is preparation of medicine, in which the medicine was prepared and the direction given by organon, how to prepare the mother tincture. That has been changed. Because you will not get mother tincture, you will get now 1x. Because the medicine are prepared in such a way, the ratio is 1:9, fast potency, that is the 1 part of the medicinal part and 9 part is your vehicle, 9 plus 1 is equal to 10. So this is the fast potency and this is the mother tincture. Why? They give the argument against this. Suppose you are preparing a medicine from the vegetable kingdom and you have procured the vegetable in winter
and another pharmaceutical company procured that same herb in rainy season. Generally in rainy season, the water content of the leaves or the root, whatever part of the plant is, the juice part is more in rainy season. In winter, the juicy part is less. So, when we are preparing the medicine in winter season, the water part of the substance is very little. While on the other hand, when we are preparing the medicine in winter season, the water part of the mother tincture is maximum. So that to exclude this problem, they started, yes, every house is to be dehydrated. Is to be dehydrated so that water part can be evaporated. And that herb is to be used for preparation of the medicine. That is the calculation of the moisture percentage of a herb. How much moisture is in that herb, that is to be calculated, and how long it is to be dried, that is to be calculated. After being calculated, the herbs is taken and alcohol is poured in, and the process goes on. And the preparation comes in the level of mother tincture. But there is no mother tincture, it is one X. It is going on, but still you open the organon of medicine, while there is aphorisms, preparation of mother tinctures at the period of hand. So what you are doing, CCH or CCRH people? Yes, absolutely. What you are doing, sir? You are doing nothing else. Simply I gave them a suggestion. Said a few instrument is there, National Institute of Homeopathy. I mean, in which way you are running your research? It is not research, simply you are carrying on a clerical job. A clerical. After giving a medicine, what are the symptoms? You noting down, yes, a new medicine has been invented and it has been incorporated in Nature Medica. I mean, sir, it is nonsense teaching and nonsense research work. Well, what do you think? I mean, yes, sir, I think like this. I will give aconite 30 in a patient. Dose, 1, 2, 3, 4, dose 5, dose 7. Few instruments I will use. Number 1, ECG. Patient will be there, instrument will be there, ECG. Simple from ECG, I will be able to see what is the changes is occurring inside the heart axis. Each and every moment, the curve will give you the information what is going on inside the heart. And I have administered aconite or I have administered cactus. In this way, if I go on like using here ECG machine, echocardiogram machine, we can assess, yes, in 30 potency of aconite or 6 potency of aconite can changes these things in heart, these things in there, these things in there. Simple, you know all. Chelidonium is very good medicine. ये aconite 30 and cactus, two remedies are there. Yeah. Only this aconite nap, Yeah. monk soup, and blooming syrup. अब राइट नाउ हम जानते हैं, वी ऑल नो, हमने पढ़ा है अपना फार्मेसी में कि ब्लूमिंग टाइम पे ब्लूमिंग सीरस का हार्ट कलेक्ट वो फ्लावर कलेक्ट करेंगे एंड दैट जूस इज एक्सट्रैक्टेड, पर्कुलेशन इज बीइंग देयर एंड द मेडिसिन प्रिपेयर, देन द कंडीशन अरूज और ये सारे सिम्टम्स परिलक्षित होते हैं. तो सर क्या उसको ब्लूमिंग टाइम पे ही कलेक्ट किया जा रहा है? नोबडी. ये तो एक बात totally wrong है, because the collection every herb's way it is. क्या उसका डॉक्टरीन उसके अंदर रहेगा, उसके अल्कलॉइड्स उस समय वहाँ मौजूद रहेंगे? When any herbs is marketed, before marketed, the herbs is to be examined from the side of the government by botanists. Whether the herbs were matured, whether there is any fungal infection, whether the medicinal property of the herbs is retaining, that certificate must be obtained from a botanist, not no other man. Botanist will examine the herb, that will be marketed. And after being marketed, when you will purchase the herb,
that herbs, pharmaceutical company will give the herb to your botanist, his personal botanist company. He will examine, yes, this herbs is okay, it is properly collected in proper stage, what you are telling, whether in the blooming state or in the young state, proper time. The properties are also Exactly, whether the medicinal property is in intact or lost. After that is to be used for preparation of medicine. That is the whole phenomena will be under the restriction or strict observation of quality control of the respective state. फिर भी although medicine is acting, ये आश्चर्य है होम्योपैथी का कि देखिए कि वो फूल उस समय खिला है या नहीं, उस पौधे को उस समय लिया गया है, मैं हिंदी नहीं कह रही हूँ, not going to so far of English and all Oxford, उसको खिले हुए कंडीशन में उसको लेकर के कलेक्ट किया गया है नहीं, लेकिन उसके एक्सट्रैक्ट तैयार हुए, उससे पोटेंसीज तैयार हुए, मेडिसिन इज एक्टिव। ये मैजिक है होम्योपैथी का, पर उन्होंने कहा कि ये उसी समय उतारो, उसी समय लो जब ये खिला है। मैं कैक्टस के बारे में बात कर रही हूँ, या ऐसे और भी रेमेडीज हैं अलग अलग मेडिसिन के बारे में अलग अलग उनके विचार रहे हैं, तो शायद के आगे मैं दृश्यता नहीं करूँगी, बट ये चमत्कार है कि वो पता नहीं किस समय कलेक्ट किया गया है, उसमें वो खिला हुआ था भी या नहीं भगवान जाने, और हम तो केवल उसको लेके आ रहे हैं, ये मेरा कैक्टस है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है भगवान ही जाने, पर ये तो पानी है। वाह, देखिए आज भी ये क्वेश्चन एलोपैथ क्यों अराइज करते हैं, जस्ट हमारा लूप होल है, हम नहीं मानते हैं सर, हम नहीं मानते। That's the main point. That's the main point. आपके इसमें फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टी है, इस तरह से दिखा के बोलेंगे जब, तब हम क्या बोलेंगे, हमें खुद पता है कि इसकी फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है, दृष्टता है सर, मार्जन करिएगा। Now, it is just mix salt. Salt. Yeah, no, sir. Yeah, I'm not elaborate. What I think myself, nobody is to hear my feelings, but what I think, what I wish to share, my thinkings, my feelings, my experience, my deficiency, my efficiency to share. Even in an institution, premier institution, they can't listen to their scholars. They take the students. All over India, 25 students they take. After being scrutinized. And when the students ask the question, that question is never fulfilled. It happened. It happened in my life. Many things. So I am doing that. I do myself. I can't explain many things. Why I can do it? Because I have taught myself. I have taught myself how. Failure. Night. I didn't sleep. Night. Go through the book, go through the old physicians' writings, then find the answer. I take it in my personal diary. This is my teachings. And I follow that. A new neophyte will not follow. Why? I have prescribed meditation. He will not follow me. He will not follow me. Leave it. Now our object was observation and prescription. So, Arpita arise a question. One patient, 4 physicians, observations 4 prescriptions. Put in front of the judge. You see, the 4 physicians have presented maybe 4 drugs different. 2 physicians may be the same. 2 physicians may differ. Don't bother for that. So where is the simile? Where is the simile? Question is there, not simile, but we try to reach to the simillimum, the most similar, as far as similar. Simillimum, rare. If it occurs, very, very rare. Cure nowadays, Hahnemann narrated the word cure. Nowadays, in present era, Hahnemann's cure is not possible.
Hahnemannian cure, they restored the sick to health. The health has two components. Health, positive health. Everybody where there is no disease. Are we healthy? When I am walking on the street, there is a big stone and you stumble on that stone. Just you pass away. Are you healthy? For the higher purpose of existence, when your body will try to use your body, your mind for the higher purpose of existence. डॉक्टर GNC रघुवंशी जी और मंच पर हमारे दाहिने तरफ डॉक्टर GN मजूमदार जी और मंच पर बड़े ही रेस्पेक्टेड डॉक्टर मनोरंजन पाल जी। आज ISWO के बैनर तले इतना बड़ा आयोजन फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस जो हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, बड़े फख्र की बात है और पूरे भारत में इसी तरह होता रहे। और होम्योपैथ का विस्तार भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होम्योपैथी को मीठी गोली भर समझा जाता है। कभी कभी गांव में जो एलोपैथी का डॉक्टर होता है सोचता है हम ही डॉक्टर हैं, हाला या सुई हुई इंजेक्शन लगाने के बाद सोचता है अपने आप को कि, लेकिन ये हमने एक देखा है कि या एक बात किसी डॉक्टर ने कल कही थी कि वो स्पेशली या न्यूरो का केस हो सकता है, स्पेशली या गैस्ट्रोलॉजी हो सकता है, स्पेशली वो किसी एक स्पेशल पार्ट यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी तमाम चीज़ों का केस। हमने देखा कि होम्योपैथिक में ऑलरेडी अगर हम एक बार निगाह अपनी दौड़ा कर देखते हैं तो हमने देखा कि यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यूरोलॉजी, यूरिन किडनी स्टोन, सिस्ट, यूरिन सिस्ट, तमाम चीज़ें हम लोग क्योर कर देते हैं होम्योपैथी से। बहुत से ऐसे किडनी स्टोन आज हम लोग सर्जरी से कितने न जाने जिंदगियां बची होंगी, जो ऑपरेशन करने के बाद कितने लोगों की किडनी और सर्जरी से कितने लोगों की किडनी डैमेज हुई। एक बार ऑपरेशन करने के बाद कई बार स्टोन बनना जारी रहता है, लेकिन होम्योपैथ का वो क्या कहें, आज होम्योपैथिक सिर्फ बताने की ज़रूरत है। आज होम्योपैथिक बहुत से गांठ गिल्टियाँ जो हमारे बॉडी के अंदर होती है उसको पूरी तरह से आज खत्म कर देता है। तो इसलिए होम्योपैथिक जो डॉक्टर होता है वो मल्टीपर्पज डायग्नोसिस करता है और मल्टीपर्पज होते हुए इसलिए हमको फख्र करना है कि होम्योपैथी एज ए मल्टीपर्पज। और हम लोग यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सर्जरी सब कुछ करते हैं, बशर्ते उस चीज को हमको प्रेजेंट करना है और उस बातों को मजबूती से रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ। सराहनीय और बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है। इसमें हम सबों का सहयोग रहा है, खास करके अमित जी, रघुवंशी जी, पाल साहब, अपने सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा है। और बहुत जो हम नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत सफलतापूर्वक हम लोग को सफलता इसमें मिली है। मेरा यही विचार है, किसी भी काम को करने के पहले सत्य पर विश्वास होना चाहिए और सही दिशा में कोई भी कदम उठता है तो सफलता की ओर मिलता है। कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता है। एक समय की बात है, द्रौपदी गंगा में स्नान करने गई थी तो एक साधु को देखा कि स्नान कर रहा है, ठंडे के मौसम थी, बहुत देर से वो स्नान कर रही थी। लड़की वाली बात थी तो इंतजार कर रही थी कि बाबा निकलेगा तो हम लोग जाएगा, लेकिन बाबा निकल नहीं रहा था। तो द्रौपदी को समझ में आया, उस समय का संतो तो 4 अंगूर का भगवा बांधता था, उस पानी में जो धो रहा था ना उसका भगवा दह गया था। भगवा जो दह गया सो निकल नहीं रहा था। तो द्रौपदी को समझ में आया कि ओ बाबा को कुछ कष्ट है। आओ बताओ क्या किया कि 4 अंगुल अपने आंचल से फाड़िया दिया कि लो बाबा लपेट के निकल जाओ। बाबा सीख लगा, अपना 4 अंगुल लिया, लपेटते हुए निकला और जाते जाते कहा कि जा बेटी 4 अंगूर दी है, भगवान तुझे 1000 अंगूर देगा। तो द्रौपदी उस समय थोड़ी जान रही थी कि हमको 1000 अंगूर मिलेगा, लेकिन समय आया तो सिद्ध हुआ कि 1000 अंगूर द्रौपदी को मिला था। और सीधे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। Just giving to my microphone to our present president, Dr. JN Singh Raghuvanshi.
I wish to specially felicitate to our Amit and conjointly ex-president, present president and ex-secretary general conjointly will facilitate our organizing committee Amit Kumar. You will be facilitated with परिवार है, दो का परिवार है, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सूझबूझ नहीं है, एक दूसरे से बातचीत करके हम कोई चीज अगर निर्णय नहीं लेते हैं, सामूहिक निर्णय नहीं लेते हैं, तो परिवार नहीं चल पाता है। आज इतना बड़ा आयोजन, ये तीसरा आयोजन है। विषम परिस्थिति में, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर अमित कुमार बहुत ही बहादुर किस्म के चिकित्सक हैं, यंग हैं, क्षमता भी है, कभी कभी हताश होते थे तो मैं बराबर इनके संपर्क में रहता था, ये मेरे संपर्क में नहीं रहते थे। क्या मैं बराबर संपर्क में रहता था, अगर सुबह फोन नहीं किया तो रात को कर लिया। डॉक्टर मनोज पाल जी से तो लगभग रोज बात होती थी, लेकिन इनकी हमारी बात कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती थी। तो लेकिन हम लोग एक उसमें बंधे थे। गड़बड़ होने का मतलब ये होता था कि किसी बात को लेके अगर ये क्या हिंदी में तुम भेज दिए हो, पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश में भेजे हो, कैसी भेज दिए हो, उसमें कितना करेक्शन करेंगे। तो हम कहे अगर हिंदी तुम्हारे समझ में नहीं आती तो मेरे पास भेज दो, इंग्लिश उतनी मुझे समझ में नहीं आती वो तुम ठीक कर लो। तो कहने का मतलब यह है कि तीन ऐसी स्थिति आई है कि जो अमित को जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बढ़िया से उसका निर्वहन किए हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। और विषम परिस्थिति में जो एक चैलेंज होता है, एक मतलब एक लीडरशिप जो डेवलप होती है, वो चीज डॉक्टर अमित कुमार के अंदर है और इन्होंने करके दिखाया है। और खास करके मैं भाई डॉक्टर पीके चटर्जी, डॉक्टर मजूमदार या डॉक्टर मुंजन पाल, इनकी प्रशंसा जरूरी नहीं है कि किया जाए, लेकिन निश्चित रूप से जो ये इतना बड़ा आयोजन हुआ कम समय में, हमारे यहाँ ये समझिए कि अभी जैसे डॉक्टर दिनेश कुमार, डीके पटेल अभी बोले हैं, इनसे मैंने कहा भाई कितना डेलीगेट ले चलोगे, तो कहा कि सर कितने लोगों को ले लें। हमने कहा कि कम से कम 10 लोगों को ले लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आपकी संख्या नहीं होगी, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो भाई ये कांग्रेस है या सेमिनार है, तो अगर संख्या बल नहीं होगा तो सफल कैसे होगा। Thank you so much. It was a very learning experience all these 2 days. I have seen my father working a lot for the last around 2 weeks for this event, and it was a very learning event. So regarding the entire field of Ayush, be it Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha or Homeopathy, and even modern medicine, I think they are like the different branches of the same tree, the tree of medical science. I think no one is inferior or superior than one another. They are just different methods of accomplishing the same goal. We have the same goal of curing the patient, and it's just taking the different routes, different paths to the same destination. So I think all these branches are equally important, and the field of homeopathy needs more research. It needs to be taken in a long way round in the coming years. We hope to see it flourishing in the coming years. And during the COVID time, it was a very good amalgamation of all these fields. We saw there was nothing known about the disease during the COVID time. So during the COVID time, we saw people rushing to allopathy, to homeopathy, to Ayurveda. I think the entire demarcation was lost. Like all the doctors from different fields were trying to find a cure for the same disease. I think it shouldn't be like that only during COVID time. It should be like that throughout. Every field should be respected and every field should be understood, and research should be taken in every field in the same manner. Thank you so much for such a lovely experience. To Dr. Amit Kumar, to my father Dr. Manoranjan Pal, to Dr. J.N. Singh Raghuvangshi, Dr. P.K. Chatterjee and Dr. J. Mazumdar. Thank you so much.
चिकित्सकगण चाहे वो हमसे उम्र में बड़े हैं या हमसे उम्र में छोटे हैं, इस मंच से जिन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया उससे किसी न किसी को हर एक किसी को कुछ न कुछ सीखने को नया जरूर मिला होगा, ये मेरा सोचना है। आप सब उपस्थित हो करके जितना मान इस होम्योपैथी को दे रहे हैं उसी तरह आप अपना सम्मान स्वयं का भी बढ़ावें होम्योपैथिक पे, ये मेरी आकांक्षा है। ये केवल 2 शब्द आपके सबके लिए था। अब मैं चाहता हूं कि इस मंच का संचालन में सबसे बड़ा सहयोग डॉक्टर मनोरंजन पाल जी का हुआ है और उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, ये मेरा उद्गार है। और मैं डॉक्टर जुबैर से कहूंगा कि आप सभी सम्मानित मंच पे जितने लोग उपस्थित हैं वो खड़े होकर के डॉक्टर पाल का सम्मान करें और आप सभी करतल ध्वन से जोरदार स्वागत करें डॉक्टर मनोरंजन पाल का। मुझे ऐसा लगा कि ये छूटा जा रहा है, इसलिए मुझे मंच से जबरदस्ती स्वयं को उपस्थित करना पड़ा। धन्यवाद। नहीं, अब आपको कम नहीं करेंगे। अच्छा, आपने लिया আমি কালকে গল্পটা শোনাতে পারিনি আপনাদেরকে, আজকে গল্পটা শোনাচ্ছি। কালকে আমি যখন এখানে ঢুকি তার একটু আমি ওখানে বসেছিলাম, তো একজন আমার বললো দল করলে কি হয়। তা আমি বললাম দল করলে কি হয়, আপনি হিন্দিতে বলতে পারবেন। दौल करने से क्या होता है बेटा, मेरा वाला भी बोला अभी सुनिएगा ना, बाद में सुनिएगा ना, अभी बोलिए अभी बोलिए। दौल करने से बॉल ज्यादा होता है। बोले कैसा करके बॉल ज्यादा होता है? जे नाव का कोई माझी नहीं है वो नाव का कोई दाम है? कांडा बिल्डिंग नौका होता है, जो नौका का माझी होता है उसका दाम है ना। उसीलिए दौल करने से बॉल होता है। और एक तो बात उसका बोला है, देखिए आप जहाँ रहता है वहाँ आप और 10 डॉक्टर को जुगाड़ कीजिएगा, सबको बोलिएगा जब भाई हम लोग का एक साथ में दौड़ करेगा, तो रात में जरूरी होगा, दिन में जरूरी होगा, तो बैठ के एक जगह गप करेगा। आप नहीं जानता है तो उससे बोलिएगा भाई जब हमारा पेशेंट ये दवाई दिया है अच्छा नहीं होता है, तो आप एक तो दवाई बोलिए भाई क्या करेगा। वो जो जानता है जरूर आपको बोलेगा। तो बोला आप तो ठीक बोला है। हाँ, अपना गांव में जाके अभी जाके वैसा काम कीजिएगा। अगल बगल में जितना डॉक्टर है सबको एक करके लेके चलना चाहिए, तो अपना होम्योपैथी का प्रोग्रेस होगा। आपका बगल में इंग्लिश डॉक्टर आप लोग भय बताए, भय का कोई कारण नहीं है। वो भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर है, वो भी 50 देखता है, आप भी 20 देखता है, आप भी 50 देखता है। का कोई असुविधा नहीं है। आपका पास बीमार अच्छा हो जाएगा तो आदमी आएगा, उनका पास बीमार अच्छा होगा तो आपका पास आ जाएगा। उससे क्या है, आप दुआ जरूर कीजिएगा। यही बोल के मेरा वक्तव्य कि आप लोग ने मुझे इस लायक समझा और उम्मीद से ज़्यादा मैं अपने कार्यकलाप के प्रति समर्पित रहा। मैं उम्मीद नहीं करता था, कार्यक्रम के एक दिन पहले तक मैं चैन से सोया नहीं। मुझे हर समय लगते रहता था कि कार्यक्रम में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी का खाने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, किसी का मान सम्मान में ठेस ना पहुंचे। मैं अपना बॉडी लैंग्वेज तक कंट्रोल करके रखा और मैं JNCU रघुवंशी का बहुत आभार हूँ। महीने में कम से कम वो सही बोले कि अमित नहीं फोन करता था, मैं फोन करता था, ये 100% सही है। हम हमेशा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। जो सिचुएशन हमारे बिहार के अंदर था
वो सिचुएशन को मैं कैसे ढाल के बंगाल में किया हूँ वो हमारा आत्मा जानता है। और हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वो सुबह में हमसे बोलता था आदमी कि मैं इतने बल के साथ आ रहा हूँ, इतने आदमी के साथ आ रहा हूँ, और शाम को पैरालाइज हो जाता था। यहाँ पर मान ले खाना का अरेंजमेंट हो, रहने का अरेंजमेंट हो, तो लोग पूछता है कि आपका लिमिट क्या है। मैं उनको बताने में संकोच होता था। इवन की जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन तक पूछा गया कि कितना आप लोग, कितना आदमी है, कितना डेलीगेट है। मैं अंदर से रोता था कि मैं क्या बोलूं। मैं भैया से, उनसे, पाल साहब से, सर कितने का बोलूं। मैं 200 का बजट लेके चलता था हमेशा। सर 200 आदमी आ रहे हैं। मैं हमेशा 200 आदमी का खाना से लेके सारा रहने का व्यवस्था तक। लेकिन माइंड में हमको अंदर से डर लगता था कि क्या होने वाला है वो हम जानते थे। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यूपी, बंगाल, उड़ीसा, मुंबई, राजस्थान वाले लोग ने मुझे जम के कोऑपरेट किया। हमारा संगठन और विस्तार हुआ। इवन कि हम लोग मुंबई में हम लोग का संगठन नहीं था, मुंबई से भी मेरे 2 मित्र आ गए, हैदराबाद में चले गए, संगठन विस्तार होते गया। अरे गांधी जी जब आजादी करने गए थे तो अकेला चले थे। आज बिहार से हम लोग 2 आदमी हैं। 2000 का बल कल मैं ही करके दिखाऊंगा। मैं उन लोगों को बड़े हैं, सम्मान पूर्वक हैं, कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है। उत्थान पतन तो लगा हुआ रहता है। घर में जब होता है तो मैं किसी को दोषारोपण देने के लायक नहीं हूँ। उन लोग गार्जियन समान है, वो अच्छे समझे होंगे, अच्छे समझ के कहेंगे होंगे। तो पाल बाबू हमेशा हमारा जब चेहरा देखते थे, अमित रुको हम कल आएगा, बस कल आते थे। बस इनको बस शेड्यूल बता देते थे, भैया ऐसे ऐसे करना है। हम इतना फ्रस्ट्रेशन में रहते थे कि हमारे घर वाले बोले क्या हो गया आपको। वो हम समझते हैं कि संगठन कैसे चलाना है, संगठन में क्या जिम्मेवारी है। एक तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और आप लोग के सौभाग्य से मेरे बिजनेस बहुत लंबी चौड़ी चलती है। 6 स्टेट में मैं काम करता हूँ और सारे कंपनियों को मेरे पास डीलरशिप है। सोचिए यहाँ मात्र 6 कंपनी का मैंने स्टॉल लगाया। चाहता तो मैं 50 कंपनी का लगा सकता था, लेकिन लोगों का भर्सन आ रहा था कि अमित कुमार कमाने के लिए कार्यक्रम करता है। मैं उसको भी त्याग दिया। मैं ऐसे बोला कि सिर्फ आप लोग फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 कंपनी आ जाइए, इसी में मेरा मान सम्मान रह जाएगा और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। जो हमारे दिल से थे वो कंपनी हमारे सपोर्ट में है। आज देखिए केंट वाले ने बोले आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। सुबह से शाम तक हर चीज में पूछते रहे, भैया कोई तरह का दिक्कत। मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग आए हैं, संगठन को बनाइए। कहीं भी जरूरत हो अमित कुमार हमेशा संगठन के लिए खड़ा था, है और रहेगा। मेंटल, फिजिकली और इकोनॉमिकली तीनों रूप से परिपूर्ण है। अब मुझे पहले तो टेंशन रहता था, अब मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हमारे चटर्जी दादा ने बोला कि अमित 50% उधर है 50% इधर है, 100% सही है। आप लोग के आशीर्वाद से कलकत्ता में मेरी 3 गो अपनी शॉप है, 3 गो अपनी मकान है। आप लोग के आशीर्वाद से अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस आप लोग का प्यार और स्नेह मिलता रहे। मैं संगठन को क्या सब लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। जिस समय किसी भी चीज की जरूरत पड़े, दवा की, कॉलेज में एडमिशन की, होम्योपैथिक संबंधित किसी भी तरह का, चाहे बुक की जरूरत पड़े, कुछ भी, सब चीज अवेलेबल कराने की कैपेसिटी हम में है और आप लोग को पूरा सहयोग करेंगे। बंगाल में जब भी कभी आइए हमारे संगठन से आप एक कॉल पालाबू को चाहे हमको कर दीजिए। हमारा यहाँ घर है, हमेशा 10 से 20 आदमी की रहने की व्यवस्था परमानेंट मेरे पास है, सियालदा मंडी के अंदर। क्या पालाबू सही बोलो ना? इसलिए आप ये संगठन में सब लोग अपने आप में एक पर एक वीर हैं। कोई जरूरत नहीं है कि अलग संगठन ही सब कुछ है। संगठन में हमको तोड़ने के लिए क्या क्या जुर्म नहीं ढाया गया, लेकिन मैं अडिग रहा हमारे रघुवंशी भैया और पाल बाबू के कारण। आज पाल बाबू नहीं रहते तो शायद हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होते। हर काम पैसे से नहीं होता है।
कुछ फिजिकली होता है, कुछ रिटेन होता है। रिटेन और फिजिकली में हमें मोगली जितना सपोर्ट किए हैं, शायद हमें कोई नहीं उतना सपोर्ट किया। हमारे भैया को हमेशा इन पर जब कुछ होता था, भैया कितने आदमी बिहार से आएंगे, आप थोड़ा देखिए, ये बेचारा भी मुंह का बात मुंह में रह के क्या करें, किसी को कुछ बोल नहीं सकते कि मैं एक भी आदमी नहीं आऊंगा। आज आप लोग का भीड़ देख के मेरा मन गदगद हो गया। अब लगता है कि चलो हम एक नहीं, हम 1000 हैं। कभी कभी क्या होता है, एक सेक्टर में काम नहीं हुआ तो दूसरे सेक्टर से 10 को आदमी 10 जगह दुकान खोलता है, 9 सेक्टर में काम होता है तो एक को मेंटेन किया जाता है। आज हम लोग बिहार से सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, हो सकता है इसकी भरपाई अगली बार हो जाए, उसके बाद हो जाए। इसलिए हम कई फ्रस्ट्रेट नहीं हुए थे, नहीं है। हमारे जितने भी गुरु रह चुके हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। वृद्ध हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, हो सकता है उन लोगों को लगता होगा कि मैं वहां जाऊंगा, पता नहीं मेरा मान सम्मान क्या होगा, क्या पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत तरह तरह की परेशानियां भी आती है जिसके कारण से हेजिटेशन होता है। मैं समझता हूँ, सब फीलिंग्स को मैं समझता हूँ, लेकिन अब दया करने से कोई फायदा नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे चटर्जी दा को, पीके चटर्जी दा को, कि अंतिम सांस लेते हुए भी संगठन को अपने मजबूती के दम पे सबको हिम्मत साहस देने का काम करके आज विराजमान है। इनकी जो अभी शारीरिक स्थिति इतनी खराब है कि आप इनके साथ 1 घंटा रहिए, यहाँ से वहां चल जाएंगे। उस दिन आए, एक दिन हॉल देखने के लिए, हमें क्या हो गया रे बाप, कहने कॉन्फ्रेंस के पहले चल जाएंगे तो मेरा कॉन्फ्रेंस क्या होगा। लेकिन हैंडमैन साहब का देन है, आप लोग का प्यार मोहब्बत है कि अभी इनको कुछ नहीं होगा, और हम लोग इनको कुछ होने देंगे। कुछ आपदा आई थी इनके साथ भी, इनकी भी मैडम चली गई, हमारे पिताजी चले गए, हम दोनों भाई फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा होल थे। लेकिन फिर भी जिनको चाहना हो तो जाएंगे ही जाएंगे, उनको तो हमारे बस में नहीं है। जितनी दिन जिनकी आयु है उसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन एक मेंटली फिजिकली परेशानी तो आती है। रघुवंशी भैया जो बोलते हैं वो करते हैं। बोला अमित, हम 40 से 45 आदमी यूपी से आ रहे हैं, बस इनके हिम्मत, पाल्ला के हिम्मत पे मैं हौसला बुलंद करके रखा। मान लिया किसी कंपनी को आप बोल के रखिएगा कि मैं 200 डॉक्टर आ रहा हूँ, उन्होंने तो अपना सारा अरेंजमेंट करके रखा, सारा खर्चा व्यवस्था करके रखा। अब मान लिया 20 या 25 की संख्या रहते तो हमारा मुंह दिखाने लायक कल के डेट में हम लोग नहीं रहते। कम से कम आज मान सम्मान के साथ इतने डॉक्टर आए, इतने डेलीगेट्स आए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने दिए। कंपनी के सारे स्टाफ से लेके मालिक कर्मचारी हम लोग को सेवा में लगे रहे। इससे बेहतर हम लोग के लिए और क्या सौभाग्य हो सकता है। आप लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनको भी मान सम्मान दिए। किसी तरह से कोई हर कचकच का नहीं हुआ, किसी तरह का कोई बदकुच्चन नहीं हुआ। इससे बढ़िया हमारा ऑर्गेनाइजेशन और क्या चल सकता। इतना ठंडा दिमाग से हर कॉन्फ्रेंस में तू मैं होते रहता था, आपस में वाद विवाद होते रहता था, इसमें तो पता नहीं चला कि किसको क्या हुआ। मैं तो रघुवंशी भैया को देख के दंग हो गया कि इस बार हॉट टॉक कभी किए ही नहीं किसी से, जो कि बिना हॉट टॉक के कार्यक्रम में नहीं होता था। हम तो दंग हो गए कि क्या हो गया सेक्रेटरी को, कि भैया का आवाज सुन के आधा आदमी बीमार हो गए। अरे रघुवंशी जी ऐसे बोल दिए, अरे पाल बाबू ऐसे बोल दिए। आज पाल बाबू का भी आवाज सबको मीठा लग रहा, रघुवंशी जी का भी आवाज मीठा लग रहा। बीच में हम ऐसा मीडिएटर है कि सबको खट्टा मीठा को मिला के मिक्सिंग कर दिए। यही होना चाहिए। विकट परिस्थिति में जो आदमी साथ है वही आपका अपना है, और जो विकट परिस्थिति में आपके साथ नहीं है वो आपका अपना आदमी नहीं है। मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग ने मुझे उस लायक समझा, और मैं उस लायक में आप लोग के साथ हाथ में हाथ, साथ में साथ मिला के साथ खड़ा रहा। हमारे मुंबई से मेरे भाई राहुल, प्लीज कम इन गाइस। मैं तुमको उस एरिया का, अभी तो तुमको प्रोजेक्ट टाइम में एक यूनिट का सदस्य बनाऊंगा। मुंबई में
ये डॉक्टर राहुल जी हुए, ये मुंबई से आए हैं, प्लीज कम इन दिस। ये दोनों भाई मुंबई से आए हैं और हम लोग का मुंबई में कोई यूनिट नहीं था। मैं राहुल को बोला, राहुल ऐसा है, तू हमारे संगठन में आओ, संगठन में आने के बाद आपको समझ में आएगा हम लोग क्या चलाते हैं। आज इन लोग को हम एक यूनिट बना रहे हैं, उसके बाद जो निर्णय होगा आगे हमारे सीनियर लोग हैं, आप लोग का सब जो सम्मान रहेगा अति रहेगा, उस स्टेट का इनको जो प्रोटोकॉल होता है प्रोटोकॉल में इनको किया जाएगा। एक फोन करने के बाद इन्होंने तुरंत हमारे व्हाट्सएप पर टिकट भेज दिया कि मैं इस तारीख के आ रहा हूँ। किसी कारण बस गलती से एक दिन बाद का टिकट इन्होंने ले लिया। कार्यक्रम था कल, तो ये आज रात के 2 बजे पहुंचे हैं। तो हम चलो अंत भला तो सब भला। कल भीड़ बहुत अच्छी थी, आज समापन में लोग चले जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस ऐसे रहता है, रोगी ऐसे लटका हुआ, मुंबई में ऐसे लटका हुआ रोगी रहता है। एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब मैनेजर गए हुए थे इनके पास, तो अपना बखान कर रहे थे, बोला कि अमित जी को जानते हैं? वो मैनेजर बोला दंग हो गया, तुम अमित को कैसे जानते हो? वो तो बोला वो हमारे मित्र हैं। एक शब्द कहने पर जो आदमी मुंबई से चल के कोलकाता चले जाए, इससे मेरी गर्व और कितनी महत्व हो सकती है, कितनी हिम्मत कि आज जहां हमें कुछ नहीं थे वहां हम चले गए। कल के डेट में हमारे यूनिट के, हमारे संगठन के किसी की जरूरत पड़ेगी तो राहुल मुंबई में खड़ा है। क्या राहुल जी? यस सर। इसे कहते हैं बुलंदी। और राहुल जी की प्रैक्टिस लाजवाब है, धन धन से परिपूर्ण है, किसी तरह की कोई कमी भगवान इन दोनों को नहीं दिए हैं। और ये बोले अमित सर मैं यहाँ आऊंगा, आपके कार्यक्रम में मैं शरीक रहूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं भैया से भी बोला था, रघुवंशी विजय बालाओ से बोले थे कि मुंबई से 2 आ रहे हैं। सोचिए अब हम लोग का कितना बड़ा संसार हो गया। हैदराबाद सेक्रेटरी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और जो आदमी महाराष्ट्र को संभाल लिया, समझिए पूरे सब जगह को संभाल लिया। कल at last Dr. JNC Raghuvanshi. Thank you, my respected seniors and energetic fellows. I am Dr. Rahul from Bombay. We have Zoroastrian Homeo Pharmacy, which is almost 55 years old, and by your blessings we are doing well. And in my individual practice, by your blessings, things are pretty well. And I am very much graced to be here in presence of so many good dignitaries. And surely, whatever chapter we want to open in Mumbai, I will be there, supporting with my full heart and with my full vigor. So let's start to expand this wonderful association to Maharashtra and to the capital of economy, that is Mumbai. Hope for the best, and we are going to see all you in Mumbai very soon. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Rahulji. We are waiting and we are looking for your advancement regarding the organization of ideal homeopathic organization in your state, Maharashtra, and we hope that you will be able to make a very big unit and sustainable unit and strengthful unit in your state within a few years. Okay, thank you, sir. To give me this opportunity for the speech vote of thanks. First, I pay to vote of thanks that all the delegates from the different parts of our India, because if they are not stay here,
the Congress will not be successful. Then I pay to my vote of thanks, Kent, Mr. Rajiv Kumar. Next, vote of thanks to the Maulali Yuva Kendra for using our auditorium and staying lodging this. So next I vote of thanks to our organizing secretary, Dr. Amit Kumar and Dr. Manoranjan Pal. इन लोग नहीं रहने से ये कांग्रेस सक्सेसफुल नहीं होता रहा. अगर ये लोग का जितना all the credit goes to that the 2%, and if there is some कोई fault रहेगा तो मेरा ये हम प्रेसिडेंट होके इसका हम दायित्व लेगा. हाँ, I thank you all of you. So okay. With this vote of thanks, I declare today, in this very moment, the first All India Welfare Organization is now suspended, not ended, because of, I think it will again held in another state next year, say it will never be ended. Rather for this year, now it is suspended, and we will be waiting for the next year. Again we will be able to meet together to hold a seminar or a congress. Thank you all the delegates. Thank you.